Hello, dear students. So, I welcome you to today's class. As you all know, we have completed this chapter, Growing Up as Boys and Girls, how the development and how the upbringing of the boys and girls is different. This is what we have seen in the chapter just now that we have completed. So, now what we are going to do, we will be, as you know, when we complete the chapter, after that we discuss the question and answers. So today we will be discussing the question and answers of this point, this chapter, Growing Up as Boys and Girls. When a child is born, whether a boy or a girl, how the boys would be brought up and how the girls would be brought up, what would be the difference in their upbringing, that is what we have discussed in the chapter. We have discussed so many examples also, काफ़ी सारी चीज़ें हमने example के through समझने की कोशिश की. Now what we are doing is we will be talking about the question and answers, discuss about it and try to understand it with the help of examples. अभी देखो, some statements are given there. You have to tell whether it is true and false. Statement है, true and false है, but then you have to say why it is true and why it is false. You have to give reasons. खाली ऐसे नहीं बोल सकते. Got it? तो आपको reason देना पड़ेगा. पहला question क्या है? All societies do not think similarly about the roles that boys and girls play. हर एक सोसाइटी में बॉयज एंड गर्ल्स का बिहेवियर जो है वो सेम, मतलब बिहेवियर तो सेम होता है, बट द रोल्स आर वेरी डिफरेंट एवरी सोसाइटी दैट इज देयर. Here children, one thing is coming to my mind, you know, in India also there are some societies, some areas are there where lot of importance is given to the girls, and when the girls are born, lot of celebrations are there. Yes children, that is there. So I give you a task. Find out the places where when the girls are born, then a lot of importance is given to the girl child and celebrations are there. And which societies, like when you are living in India, the state that you are living in, आपके नाम के आगे आपके फादर का टाइटल आता है, ठीक है? योर फादर्स नेम इज अटैच्ड विथ योर नेम. एवरीवेयर दैट इज देयर, बट सम स्टेट्स आर देयर, बिलीव मी चिल्ड्रन, some states are there where the children are known not by the name of father but by the name of mother. माँ के नाम से जाने जाते हैं. तो वो आपको पता करना है वो कौन से स्टेट्स हैं. ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स का सबसे क्या है, देखो मोस्ट सोसाइटीज में क्या है, द रोल मेन एंड वीमेन प्ले और द वर्क दे आर नॉट वैल्यूड इक्वली. इक्वल नहीं समझा जाता है. दे डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. सो इट इज सपोज दैट हाउस होल्ड वर्क मस्ट बी डन बाय विमेन वाइल मेन डू द ऑफिस वर्क. ओके, तो all societies do not think similarly about the roles boys and girls play. बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में सारी सोसाइटीज में सिमिलर नहीं. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. बॉयज एंड गर्ल्स जब बड़े होते हैं तो हमारी सोसाइटी में उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. इज इट सो? डज आवर सोसाइटी एक्ट इन दैट वे वेयर वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स? देखो, अभी एक चीज है टू अंडरस्टैंड. एज पर मेंशन इन द बुक, जैसा बुक में मेंशन है उसके हिसाब से दिस इज फॉल्स. लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप ऐसे होंगे जिसमें कि बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में देयर इज नो डिफरेंस. इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द बॉयज एंड द गर्ल्स. इट माइट बी हैपनिंग, ठीक है, नॉट नेसेसरीली दैट everywhere it is happening. This is not there. Got it? Please try to understand.
So distinction between boys and girls, it is starts from a very young age, बहुत बचपन से शुरू हो जाता है. And both of them are given different toys to play. अलग अलग toys दिया जाता है. Boys are given cars and girls are given dolls. And they are told how girls must, मतलब लड़कियों के कैसे होने चाहिए, गेम्स कैसे होने चाहिए, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, टॉयज दैट द गर्ल्स आर यूजिंग, वो भी बहुत ही ऐसे टॉयज होने चाहिए. आप देखो जब बॉयज़ का बर्थडे होता है तो उनको एरोप्लेन दिया जाता है, बाइक दिया जाता है. गर्ल्स का होता है किचन का सेट दिया जाएगा. अभी तो आई हैव सीन डिफरेंसेस हैपनिंग. आई वेंट टू वन गर्ल्स बर्थडे, तो डॉक्टर वाला किट दिया गया था. देन द गर्ल सेड मैं तो बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी. शी वॉज अ 5-year-old किड. तो डिफरेंट काइंड्स, अभी टाइम्स आर चेंजिंग, विद दैट द थॉट प्रोसेसेस आर ऑल्सो चेंजिंग. गॉट इट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि द डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स, इट इज नॉट सिमिलर एवरी टाइम. हमेशा वो सिमिलर नहीं होता है. गॉट इट? ओके चिल्ड्रन, सो बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस यू हैव सीन. अभी हमने जो बात किया फॉल्स है. जानते हो, आई टोल्ड यू कि आपके घर की कंडीशन हो सकता है अलग हो, तो इसमें आप जो है, इसमें अगर आप फॉल्स देना चाहो तो दे सकते हो, ट्रू भी देना चाहो. दे डज नॉट. बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी है जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिफरेंस नहीं मानते हैं. बिलीव मी चिल्ड्रन, इट हैपन्स दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. गॉट इट? तो अगर आप इसको ट्रू देना चाहते हो तो ट्रू भी दे सकते हो आप. मैं आंसर इसमें दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई वाज डिस्कसिंग. बट देन वन थिंग दैट हैड कम टू माई माइंड कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई भेदभाव नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. गॉट इट? सो व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड. विमेन, अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. विमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क. ये तो डेफिनेटली प्लीज 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 से दैट इज फॉल्स. हमने बहुत सारा डिस्कशन किया इसके ऊपर, इजंट इट? यू रियली फील दैट इट इज फॉल्स? नो. ठीक है. So children, responsibility, of course it is a false statement. Housework is like looking after the children, cooking, washing clothes, looking after etc. बहुत सारी चीज़ें हैं. Lot of pressure is there, hard work is there. तो this is not recognized as work. इसको काम नहीं मानते हैं, which is very wrong. ऐसा नहीं होना चाहिए. So women work right from मॉर्निंग टू नाइट. चिल्ड्रन प्लीज समझने की कोशिश करो, ये जरूर मेंशन करना है. यू नीड टू मेंशन दैट. गॉट इट? ओके. लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द वर्क दैट विमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन. गॉट इट? विमेन वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग, उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है. एंड मेल मेंबर्स वो जितना भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर वर्क द मेल मेंबर्स आर डूइंग, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. द मेल मेंबर्स, आई मीन इन आवर सोसाइटी, दैट इज वॉट इज द ट्रेंड, दैट वॉट एवर वर्क इज बीइंग डन बाय द विमेन इज लेस वैल्यूड, एंड मेल मेंबर्स का वर्क जो है that is more valued. Got it? So men are getting paid for what they are doing in the office, earn the livelihood. लेकिन women क्या करती हैं, who is working from morning to night in the household duties, they are not paid for. Payment तो मिलती नहीं है. Okay? And the household work is considered as a natural duty for women. कि विमेन है तो वो काम उनको करना ही करना है.
एंड इट इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन. मर्दों से इनका काम जो है वो कम वैल्यू किया जाता है. हाउस वर्क इज इनविजिबल, अनपेड वर्क. हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग. हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो अभी इसमें दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन चिल्ड्रन, यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर इसका मतलब समझ जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा आपकी मम्मी क्या क्या काम करती हैं घर पे. हाउस वर्क इज इनविजिबल. मैंने बताया ना, आप स्कूल से घर जाते हो, सारी चीजें सेट मिलती हैं, खाना बना मिलता है, कपड़े धुले रहते हैं, बिस्तर सही रहता है, अलमारी सही रहती है. आपको लगता है अरे वाह कितना अच्छा है, इट इज वेरी नाइस. इनविजिबल. एंड ऑफ कोर्स यू नेवर पे. आप क्या पे करोगे? इट इज नॉट पेमेंट, इट इज द लव एंड रेस्पेक्ट दैट यू गिव टू योर मदर, एंड द वे यू आर इंटरैक्टिंग विद योर मदर. आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ये मायने रखता है. ये मायने नहीं रखता है कि क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. गॉट इट? नंबर आप अच्छा लाओगे, मम्मी के लिए वही सबसे बड़ी सैलरी है. मम्मी सिर्फ इतना इसलिए कर रही हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो. डू योर वर्क प्रॉपरली. दैट इज वॉट योर मदर वॉन्ट्स. ओके, सो हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग. बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कठिन काम करना पड़ता है बेटे. एंड टाइम कंज्यूमिंग. पूरा दिन मम्मी का निकल जाता है, सुबह से लेके शाम तक. शाम तक नहीं बेटा, रात तक. मदर्स आर बिजी. सो अभी इनविजिबल का मतलब आपको बताना है. फिजिकली डिमांडिंग. Please explain what do you mean by physically demanding and time consuming. अभी मैंने आपको बताया, just now I told you. तो आपको इसमें एग्जाम्पल देना है. Give one example of each. How it is invisible. What is the work that your mother is doing. All this you have to mention. ठीक है? Let's see the answer. Got children? तो let's see the answer. देखो, इनविजिबल, यू नो द टेक्निकल, यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविजिबल ना. ऑफ कोर्स यहां पे मीनिंग समझाया गया है, विच कांट बी सीन. एंड हाउस वर्क में इनविजिबल क्या है? विच कैन बी सीन ओनली व्हेन इट इज नॉट डन. आई गेव यू एग्जाम्पल. फिर से एग्जाम्पल बताती हूं. एक दिन मम्मी अगर कपड़े नहीं धोएंगी, खाना नहीं बनाएंगी, झाड़ू पोछा घर पे नहीं होगा, घर का सामान सारा ठीक से नहीं रखा होगा, तो आपको समझ में आएगा, देन इट वुड बी विजिबल व्हाट ऑल वर्क योर मदर इज डूइंग. अदरवाइज इट इज ऑल इनविजिबल. आपको देख के नहीं समझ में आता है कि ओ माय गॉड इतना सारा काम मम्मी ने कर दिया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फिजिकली डिमांडिंग. बहुत कठिन मेहनत होती है बेटे. Okay, so what is this physically demanding work? ये physically demanding क्या है? Hard work and efforts. एक दिन कपड़े के, खाना बना के, झाड़ू पोछा करके, एंड देखो ये सारी चीजें तो मैं आपको बता रही हूं. This is what I am just telling you. इसके अलावा भी आप समझ रहे हो, if some guest has come, घर में दादी नानी हैं, उन लोगों के लिए खाना बनाना है, उन लोगों का सारे टाइम सेवा करनी है, वो सब भी वो कर रहे हैं, वो भी अभी इनविजिबल है, वो भी नहीं दिख रहा है आप लोगों को. गॉट इट? तो बहुत हार्ड वर्क है, बहुत एफर्ट्स है. वेन एवर यू गेट अ चांस, प्लीज गो एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर मदर. आ रही बात समझ में बेटा? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मम्मी कितना काम कर रही हैं. हार्ड वर्क, एफर्ट्स बहुत सारा, फ्लोर क्लीनिंग ऑफ, देखो फिजिकली डिमांडिंग. फिजिकली मम्मी क्या क्या काम कर रही हैं ये भी समझो. फ्लोर क्लीन कर रही हैं, वॉशिंग क्लोथ्स कर रही हैं, तो फिजिकली डिमांडिंग वर्क.
एंड आप लोग स्कूल आते हो, स्कूल से आप घर जाते हो, तो आपको लगता है कुछ भी तो काम मम्मी ने नहीं किया, क्या करा, घर में आराम ही तो कर रही थी। हम लोग स्कूल जाके इतना सारा पढ़ाई किया, इतना गेम्स खेल के इतना थक गए हैं। मम्मी मम्मी ने क्या क्या काम किया है घर पे, ठीक है। लॉट ऑफ वर्क दैट मदर हैज डन। कुकिंग इज टाइम कंज्यूमिंग वर्क। बहुत ज्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में, इस चीज को समझो। आई वॉन्ट से कि जाके आप खाना बनाओ, बट वन थिंग दैट मदर डेफिनेटली वॉन्ट्स इज टेकिंग केयर। उनकी भी आपको केयर करना है, ओके। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग आफ्टर योर मदर। टाइम कंज्यूमिंग इनका काम है ही, टेक्स्ट टू बी कंप्लीटेड। कुकिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली इज अनदर टाइम कंज्यूमिंग। आप बीमार पड़ जाते हो, डॉक्टर के पास दवाई टाइम पे, ये वो सब कुछ जब आप सोचोगे, व्हेन यू थिंक इट इन डिटेल, देन यू अंडरस्टैंड कि ओ गॉड मम्मी कितना काम करती है। गॉट इट? ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज प्ले and another for girls, and if there is a difference between the two list, इन दोनों लिस्ट में अगर कोई डिफरेंस है तो किस लिए है, what is the cause of that difference, कुछ रीजन आप सोचिए why this is so, and any relationship is there between the roles of children who have to play as adults। बच्चों की ड्यूटी, जो बच्चे एडल्ट्स की तरह रहते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा काम बताना पड़ेगा। अभी टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज प्ले, सब की लिस्ट देख लो। कार्स, टॉय गन्स, क्रिकेट, ये देखो बॉयज की लिस्ट। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, दिस इज व्हाट बॉयज आर डूइंग। द गेम्स दैट द गर्ल्स आर प्लेइंग, किचन सेट, सबसे ज्यादा मैंने भी बचपन में किचन सेट से बहुत खेला है। डॉल, टेडी, बैडमिंटन, स्किपिंग, स्किपिंग तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स माइट हैव डन स्किपिंग, बॉयज ऑल्सो डू स्किपिंग, लेकिन स्किपिंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इट इज गुड ऑल्सो, काफी अच्छी एक्सरसाइज है, इजंट इट? तो ये जो गेम्स की लिस्ट में जो डिफरेंस है, हाँ, पहला तो एक तो मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में जो सोचने का तरीका है लोगों का, द वे पीपल थिंक, एक तो ये हो गया। देन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, आप देखने में कैसे हैं, हाउ आर दे लुकिंग, आई मीन टॉल, स्टाउट, छोटे हैं, बड़े हैं, उसके हिसाब से भी गेम्स डिसाइड होता है। एंड गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, बॉयज नीड टू बी टफ, ये भी हमको समझना है। तो इट हैव रिलेशनशिप टू द रोल्स दैट चिल्ड्रन प्ले एज, बॉयज को टफ होना है, इसीलिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टॉयज, ऑल दैट आर मेकिंग देम टफ एंड रफ। गॉट इट? तो द थॉट गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, बॉयज नीड टू बी टफ, इसके ऊपर वी नीड टू थिंक अबाउट इट। And children have to play as adult as men, because men are supposed to work outside in the office, and girls को घर पे काम करना है, women are supposed to work at home and do the household work। तो इसके वजह से this difference is there। And then the next question, if you have someone working as domestic help, आपके घर में जो maids काम कर रही हैं in your house, उससे बात कीजिए, टॉक टू हर, फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट हर लाइफ, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती है, क्या चीज़ें वो चाहती है, वेयर डज शी नीड द हेल्प, ऑल दीज थिंग्स प्लीज टॉक टू हर, और उसके ऊपर आप एक स्टोरी लिखिएगा। आई वुड सिंसियरली फील दैट यू ऑल शुड डू दिस वर्क। ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर करना है आप लोगों को, प्लीज़ टेक इट एज एन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4, got it?
do it. Okay, so here we have completed your chapter. Now we start a new chapter. I'll just give you a brief introduction of the chapter and next class mein we will be continuing. Got it, children? Hello students. मैंने आपको कहा कि अभी नया चैप्टर शुरू करेंगे. Got it? As you all know, we have completed chapter 4, political science. मैं चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस में ही शुरू करना चाह रही हूं. क्यों? I'll give you the reason. मैं आपको ये रीजन बताऊंगी बेटे कि चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस में why I am starting this chapter, because this chapter is connected to the previous chapter. ये दोनों चैप्टर मुझे एक साथ ही करना है, तभी आपको ये क्लियरली समझ में आएगा. Got it? That's why I have chosen chapter 5, women change the world. How women change it? Because previous chapter was also talking about completely women. हमने कितना आपकी मम्मी के बारे में बात किया. Because she is the woman जिसको आप रोज देखते हैं. मैं बार बार आपकी मम्मी का एग्जाम्पल इसलिए दे रही थी कि आप समझें उनकी इंपॉर्टेंस. आपको पता चलना चाहिए कि वो कितना काम करती हैं और बिना शिकायत किए हुए करती हैं. Got it? So the work that she is doing, how it is important, what is attached to that, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी. That's why I had taken this chapter. Got it? तो ये दोनों chapters link है. That's why chapter 4 के बाद we have started chapter 5. Women change the world. कैसे? How? How do women change the world? वो क्या करती हैं कि पूरी दुनिया में इतना इफेक्ट आता है? Let's talk about it. तो अभी हम पहले तो we will be getting a brief explanation about the previous chapter कि women जो हैं घर पे काम करती हैं, it is not recognized. बार बार ये बात बोली जा रही है. We are studying this chapter, we are studying this topic and continuously it is being said. तो आप ये समझो that the women work needs recognition. सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंस देना है आपकी मम्मियाँ जो काम कर रही हैं घर पे, जो कि हम नहीं देते हैं. खाली हम नहीं, मतलब मैं खाली अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बट इट जनरली डजंट हैपन. ओके, देन हाउस होल्ड वर्क, घर की काम के बारे में बात की हमने. केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, गॉट इट, दे डू केयर फॉर द फैमिली मेंबर्स, वी टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. देन वी टॉक अबाउट द फुल टाइम जॉब, सारे टाइम लेडीज काम कर रही हैं. नो स्पेसिफिक आवर्स आर देयर, कितने घंटे काम करेंगी इसका कुछ हिसाब किताब नहीं है. एंड वी विल लुक कि द वर्क दैट दे आर डूइंग आउटसाइड द होम, घर में क्या काम के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बात किया. आई टोल्ड यू ना दैट द प्रीवियस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज कनेक्टेड. घर में वो क्या काम कर रही है, लेट्स टॉक अबाउट इट ऑल्सो. ठीक है, वो हमने कर लिया. बाहर वो क्या काम कर रही हैं, अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन. कुछ काम काज ऐसा है ना जो लगता है कि हाँ वीमेन अच्छा कर सकती हैं. बाहर के काम की बात कर रही हूं, घर में तो वीमेन ही सारा काम करती हैं, लेकिन द आउटसाइड वर्ल्ड दैट इज देयर, बाहर की जो दुनिया है उसमें भी इट इज सेग्रीगेटेड, अलग अलग किया हुआ है कि औरतें हैं तो ही वो ये काम करेंगी एंड मर्द हैं तो वो यही काम करेंगे. गॉट इट? देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ मच विमेन हैव स्ट्रगल्ड फॉर इक्वालिटी. विमेन के लिए इक्वालिटी इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, दे आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस. तो एजुकेशन उनको मिलना चाहिए. अभी भी चिल्ड्रन, आई विल मेंशन अबाउट सर्टेन थिंग्स. गांव में क्या होता है, बॉयज पैदा होते हैं तो ये कहा जाता है बॉयज विल गो, बाहर जाएंगे स्कूल में पढ़ेंगे. गर्ल्स के लिए इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द गर्ल्स टू गो टू स्कूल.
डू यू रियली थिंक सो? ऐसा नहीं है. तो वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वेयर क्रिएटेड फॉर विमेन, औरतों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई, एक नया मौका मिला. तो इस चैप्टर में हम ये सारी नए अपॉर्चुनिटी, नए फैसले के बारे में बात करेंगे, विमेन्स मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड वी विल चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन. मतलब औरतों को जो दबाया गया, औरतों को जो सताया गया, इट हैज हैपेंड. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अभी चैप्टर में भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. वी विल बी सीइंग सम एग्जाम्पल्स दैट आर देयर इन द चैप्टर. ओके, उसके थ्रू ही हम इसको समझेंगे. तो ये देखो, वन वेरी नाइस पिक्चर इज हियर, है ना. लुक एट द विमेन, लुक एट द गर्ल एंड द वर्ल्ड शी इज होल्डिंग इन हर हैंड. नाउ चिल्ड्रन, आपके बुक्स में, अगर आपके पास बुक है तो आपको ये इमेजेस बनानी है. अगर बुक नहीं भी है तो भी ये एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूं. यू हैव टू मेक दीज इमेजेस इन योर नोटबुक. आप अपने नोटबुक में ये इमेजेस बना के मुझे भेजना. भेजोगे ना? प्लीज सेंड इट टू मी. आई वुड लव टू सी हाउ यू ऑल आर डूइंग द ड्रॉइंग्स. ओके, सबसे पहले आपको एक फार्मर का इमेज बनाना है. जिनको देखो ड्राइंग का शौक है, जिनको ड्राइंग नहीं भी आती है, उनको भी मैं कहूंगी आप ये एक्टिविटी जरूर करना. यू कैन ड्रॉ, सो ड्रॉ अ फार्मर हियर. गॉट इट? एक अच्छा सा फार्मर बनाना है आपको. ओके, सेकेंड में क्या बनाना है? फैक्ट्री वर्कर. फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री में एक आदमी काम करता हुआ आपको दिखाना है, और वो फैक्ट्री में मशीन ऑपरेट कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इस तरह की कोई चीज आपको दिखानी है. ओके, थर्ड पिक्चर में आपको एक नर्स बनाना है. ओके, यू हैव टू मेक अ नर्स. आजकल नर्सेस कितना काम कर रही हैं. ठीक है, नर्स का नाम आया ना तो इट जस्ट केम टू माई माइंड. लुक एट द वे नर्सेज आर वर्किंग इन दिस कोरोना एरा. घर नहीं जाती हैं, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से वो नहीं मिल रही हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर सर्विंग द कोरोना पेशेंट्स. गॉट इट? तो नर्स की आपको फोटोग्राफ बनानी है इसमें. फोर्थ पिक्चर एक साइंटिस्ट की बनानी है. प्लीज मेक दिस पिक्चर. यहां पे यू विल मेक अ साइंटिस्ट. सो शो अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ लैबोरेटरी, और कुछ ऐसे हाथ में टेस्ट ट्यूब लेके और इस तरह का कुछ बना सकते हैं. मेक दिस पिक्चर ऑफ अ साइंटिस्ट. देन यू मेक अ पिक्चर ऑफ अ पायलट. हाँ, सबसे पहले तो ऐसा करो, एक छोटा सा एरोप्लेन बना लो. उस एरोप्लेन में यू शो पायलट हु इज सिटिंग देयर, हाउ दैट पायलट इज फ्लाइंग द प्लेन, क्या क्या काम वो कर रहा है, वो उसका आप उसको हेलमेट दिखाओगे, एंड उसका ऑल द apparatus दैट ही हैज पुट. मेक द पिक्चर ऑफ द पायलट. नेक्स्ट पिक्चर यू विल बी मेकिंग, एक टीचर की पिक्चर बनानी है. मेरी पिक्चर बनाओ. मेक माई पिक्चर. गॉट इट? प्लीज ड्रॉ माई पिक्चर इन दैट. इजंट इट? चलो, डोंट मेक माई पिक्चर, मेक योर मैथ्स टीचर्स पिक्चर, और यू कैन मेक योर इंग्लिश टीचर्स पिक्चर. आई वाज जस्ट जोकिंग. आपको जो भी टीचर का मन है आप उन टीचर की पिक्चर बना सकते हो. गॉट इट? अभी इसके बाद की एक्टिविटी जो है ना, दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग. जो इमेजेस बने हैं, आप लोग वो इमेजेस जब मुझे भेजोगे, उसके बाद आई विल डू दिस एक्टिविटी. This activity, I will be showing it to you. I will be discussing it in the online session. जो पिक्चर आप बनाते हैं, ओके, कि कितने लोगों ने टीचर की मेल फिगर बनाई है, कितने लोगों ने फीमेल फिगर बनाई है. How many of you have shown a male farmer? How many of you have shown a female farmer? ओके, देखो, डोंट चेंज योर आइडिया. आपके दिमाग में जो इमेज आ रहा है, द इमेज दैट इज कमिंग इन योर माइंड, make that image only. Got it? So by making that image, lot of things will come in front. बहुत सारी चीजें नहीं होंगी जो कि हम डिस्कस करेंगे. ओके,
तो ये सारी आप इमेजेस बनाओ, उसके बाद वी विल बी डूइंग द डिस्कशंस, and then there are certain questions that you all have to answer. Are there more images of men than women? What kind of jobs? More images of men are there, more images of women are there. All the nurses फीमेल ही बनाई है, क्यों? एंड फीमेल फार्मर्स की भी पिक्चर बनाई है क्या? अगर नहीं बनाई है तो क्यों, और अगर बनाई है तो क्यों? सो वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन in the online session. Till then, children, please make it. It's very creative. You will enjoy doing it. Got it? Thank you, children, and all the best to you. We'll continue in the next class.